Chloromethane on treatment with excess of ammonia yields mainly. So for this, first of all, we will write the reaction. Chloromethane means CH3Cl, NH3 excess. Now, students be careful here. We are using excess of ammonia. So first of all, as we know, we'll get 1 degree amine, aminomethane, CH3NH2 plus HCl. Now the reaction will stop here. It will not further react with alkyl halide because here we are using excess of NH3. So the main product we will get from this reaction will be option number 3. Let's move to next question. Molecules whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecules is chiral in nature? So chiral students हमने पहले भी स्टडी किया कि जब कार्बन के साथ चारों बॉन्ड्स के साथ कोई भी डिफरेंट ग्रुप या कार्बन एटम की कोई भी और एटम लगा हो तो वो होता है chiral या एसिमेट्रिक. तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. So the first structure is 2-bromobutane. ब्यूटेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ 4 कार्बन चेन. 2 पे हमारे पास है ब्रोमो, बाकी हम इसके बॉन्ड फुलफिल कर देंगे. ओके. नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो जिस कार्बन जो है हमारे पास, तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है हमें वो चेक करना है chiral है कि नहीं. तो ये कार्बन के साथ हम देख सकते हैं CH2 ग्रुप लगा है, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन. मीन्स ये कार्बन chiral है क्योंकि इसके चारों बॉन्ड्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. इसका मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आती है. लेकिन बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट होगा. लेट्स एक बार ही ट्राई कर लेते हैं. सेकंड ऑप्शन 1-ब्रोमोब्यूटेन मीन्स CH3 CH2 CH2 CH2Br. तो इस कार्बन को हमने चेक करना है. तो इसकी एक साइड पे तो CH2 ग्रुप है और एक साइड पे Br है, लेकिन 2 बॉन्ड यहाँ पे सेम हो गए, वो हाइड्रोजन के हो गए, तो इसलिए ये भी chiral नहीं है. थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करें 2-ब्रोमोप्रोपेन. प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन. सेकेंड कार्बन पे हमारे पास Br लगा है और इनको सेटिस्फाई करने हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे. और इस कार्बन के अगर हम देखें यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 है, तो ये डिफरेंट नहीं है, तो ये भी chiral नहीं होगा. Now fourth option if we check, it is 2-bromopropane 2-ol. Propane means again 3 carbon, 2-bromo here Br and OH also on the second carbon, and here there will be CH3 CH3. So this is 1 2 3 2-bromo propane 2-ol. So here also CH3 CH3 same group, so this is also not chiral. So the correct option is 1. Let's move to next question. Question 23. Reaction of C6H5CH2Br with aqueous sodium hydroxide follows. So first of all, let's draw the structure of C6H5CH2Br. CH2Br. They say we have to react it with aqueous NaOH, and which mechanism it will follow. They are asking SN1 mechanism, SN2, any of the above depending upon the temperature of the reaction, or Sitzeff rule. So students, first of all, let's eliminate the fourth reaction, because here Sitzeff rule will not be followed because it is followed only in case of elimination reactions. And depending if we see the third option, any of the verb depending upon the temperature, so this is also not correct because it depends either on SN1 or SN2, and we have studied that in SN1 mechanism the order of reactivity is 3 degree highest, followed by 2 degree and 1 degree, and the highest one is the benzylic carbocation. Now let's see how. Because the carbocation which will be formed during the mechanism will be this CH2 positive, right? And this carbocation will be stabilized by resonance. This is the most important reason, that it is resonance stabilized. So the correct option is, students, we have first is the correct option. Next, let's move on to 24th question. Which of the carbon atoms present in the molecule given below are asymmetric? So again, asymmetric means which of the following carbon is chiral. So carbons are marked A, B, C and D. So
स्टूडेंट्स अगर हम पहले देखेंगे तो जो ए और डी कार्बन है वो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और कायरल का मतलब है कार्बन के साथ चारों और डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए। सो अगर हम बी कार्बन देखें तो इस कार्बन के साथ इस पूरा जो ग्रुप है ये हमारे पास पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच्ड है, COOH, दिस इज होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर एक साइड पे वो हाइड्रोजन है, एक साइड पे OH है और एक साइड पे सिंपल नेक्स्ट कार्बन है। सो मीन्स बी इज अ कायरल कार्बन। इफ वी विल सी द सी ऑप्शन, सो वन साइड पे उसके पास एक कार्बन अटैच्ड है, एक साइड पे हाइड्रोजन OH और दूसरी साइड पे ये कौन सा वाला ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, CHO। मीन्स इसके भी चारों और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी, मीन्स सेकेंड ऑप्शन। जो बी एंड सी कार्बन है ये दोनों कायरल कार्बन्स हैं। So let's move to next question. Question number 25. Which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH negative ion? So the first condition for obtaining a racemic mixture is that the compound must have chiral carbon. कायरल कार्बन हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, जिसके चारों बॉन्ड्स के साथ अलग अलग कंपाउंड लगा हो। तो लेट्स चेक। सो फर्स्ट कंपाउंड में कौन से कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसके साथ। तो इसमें हमारे पास ये C है, एक साइड में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और एक पे Br, मीन्स ये वाला जो है ये कायरल कार्बन कंटेन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। इसमें जो Br है ये जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, मीन्स तो सेम ग्रुप आ गए, तो ये तो कायरल नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें भी Br जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो फर्दर दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, मीन्स ये भी जो है कायरल कंपाउंड नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर इज दिस। Now, in the next questions we have, in the question 26 to 29, arrange the compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution. Students, in this question we have to check the factors कि nucleophilic substitution reaction किन factors पे depend करती है। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल होता है एक हमारे पास कोई भी नेगेटिव स्पीशीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मीन्स हो गया नेगेटिव स्पीशीज ने सब्सटीट्यूट करना है जो भी हमारे पास रिंग के साथ एटम या कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगा होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे ये डिपेंड करता है। अगर तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पे लेफ्ट कौन सा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बच जाएगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव इजीली रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मीन्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर एग्जाम्पल CH3 ग्रुप हो गया हमारे पास, OCH3 ग्रुप हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। इन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, मीन्स इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो अटैकिंग साइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो क्या नेगेटिव के पास जाएगा अटैक करने? बिल्कुल नहीं। तो ये रिएक्शन फिर पॉसिबल मतलब करानी इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मोस्ट कॉमन नाइट्रो ग्रुप हमारे पास होता है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो 26 क्वेश्चन में हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, फिर हमारे पास क्लोरोबेंजीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और फिर मेटा पोजीशन पे NO2। तो हमें पता है कि जो NO2 ग्रुप है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी और पॉजिटिव चार्ज आगे क्रिएट करेगा ताकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ईजी हो जाए। तो अब इतना तो हमें पता चल गया कि जो सेकेंड और थर्ड कंपाउंड है वो वन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन हमने कैसे करना है वो हमने देखना है कि NO2 जितना पास होगा क्लोरीन एटम के उतना ज़्यादा वो अपना इफेक्ट शो करेगा, मीन्स ऑर्थो वाला जो है वो सबसे ज़्यादा
रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जिसमें सेकंड कंपाउंड है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होगा. सो हम देखें ऑप्शंस में तो यहाँ पर है सेकंड फॉलोड बाय थर्ड, और जो वन है जिसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है वो लीस्ट होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. लेट्स मूव टू 27. इसमें भी हमें चेक करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है CH3 ग्रुप, और CH3 ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मीन्स ये इलेक्ट्रॉन उनको गेन करवाएगा. राइट, मीन्स हमने स्टडी किया कि जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टुवर्ड्स कम होती है. इसका मतलब ये तो पक्का है कि ए कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो ऑप्शंस में हम चेक कर लेते हैं. सो हमारे पास है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई होगा. तो हमने चेक करना है बी और सी में से कौन सा ज़्यादा. तो हमें पता है ऑर्थो पे कोई भी इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा, तो ये कम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी होगी इसमें. तो जो सी कंपाउंड है वो इससे ज़्यादा होगा. मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ फोर्थ, ए सबसे ज़्यादा, फिर ये वाला मेटा पोजिशन वाला ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज द 28th question. We have chlorobenzene, simple. Then we have NO2 group. Then again NO2 group we know is electron withdrawing group, and it increases the reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. Now here we have NO2, here we have ortho para. So हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि higher the number of electron donating group, withdrawing group, higher the number of electron withdrawing group, higher is the reactivity towards nucleophilic substitution reaction. Higher is the reactivity towards nucleophilic substitution reaction. That means C compound will be the most reactive, then B compound, and then A compound. So we have the order CBA. So here the correct option will be option number 4, C, highest, then B, then A. Let's move to 29th question. Here also we will follow the same concept. Now here the difference is that कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट होगा कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लोअर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, लोअर विल बी द रिएक्टिविटी towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction means A कंपाउंड तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन आई थिंक विल बी द करेक्ट. यस, क्योंकि बी में एक ही है, तो वो सी जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड्स हैं उससे तो बी ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. 30th question. Which is the correct increasing order of boiling points of the following compounds? 1 iodobutane, 1 bromobutane, 1 chlorobutane and simple butane. So अगर हम यहाँ पे चेक करें कार्बन की चेन लेंथ, तो ब्यूटेन और बुटेन ही है, तो हमें ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ तो सेम है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है हैलोजन एटम्स की तरफ. सो अगर हम हैलोजन एटम्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है. आयोडीन का हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है. दैट मीन्स 1 आयोडोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और हमारे पास ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में है 1 आयोडोब्यूटेन हाईएस्ट, देन 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, और वो ब्यूटेन जिसके साथ कोई भी हैलोजन एटम नहीं है उसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Which is the correct increasing order of boiling points of the following compounds? 1 bromoethane, 1 bromopropane, 1 bromobutane and 1 bromobenzene. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो हैलोजन एटम तो सेम है, ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, लेकिन जो पेरेंट चेन है उसमें फ़र्क है. इथ मीन्स 2 कार्बन, prop means 3 carbon, but means 4 carbon, and benzene ring, we know this one, benzene ring,
and bromobutane means this Br. So is there 6 carbons. So higher the number of carbon atom means जितनी ज़्यादा बड़ी पेरेंट चेन होगी उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो हम देखें बेंजीन वाले का सबसे ज़्यादा होगा. सो इन द फोर्थ ऑप्शन एज वी कैन सी 1 ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, देन 1 ब्रोमोबेंजीन, ये 6 वाला, 6 कार्बन वाला, देन 4 कार्बन, 3 कार्बन ड्रॉप एंड देन दिस 2 कार्बन. हायर द number of carbon atom, more will be the boiling point. So the correct option is option number 4.